Good morning, student. Today we are going to see lesson number 16, Heredity and Variation, and we have already completed part 1, part 2, part 3, and part 4 is now we are seeing. We have covered inheritance, heredity, chromosomes, types of chromosomes, DNA, genes, DNA fingerprinting, RNA, types of RNA, Mendelian principles, that is monohybrid cross and dihybrid cross. So, previously we have seen the ribosomal RNA, the molecule of RNA which is component of ribosome, messenger RNA, that a message which is taken from genes to ribosome, the message about the protein synthesis, which protein we have to synthesis, the message is from genes to ribosome. And then we have seen transfer RNA, that is which is transferring the information in a coded form into the amino acids, that is formation of amino acid. According to mRNA, the tRNA transforms that message into uh, amino acids. And the cross between the pea plant with one pair, that is monohybrid cross, and two pairs, that is dihybrid cross. We have seen this in detail, and we also calculated the ratio. Monohybrid ratio was the phenotypic monohybrid ratio 3 to 1, and the genotypic ratio, that is 1 to 2 to 1. Dihybrid ratio, phenotypic dihybrid ratio was 9 to 3 to 3 to 1, and the genotypic dihybrid ratio was 1 to 2 to 1 to 2 to 2 to 1 to 4 to 1 to 2 to 1, 4 बार 1, दो 4 बार 2 और 1 बार 4, ऐसे करके वो डायहाइब्रिड रेशो है. Next, today we are going to see the genetic disorders, chromosomal abnormalities, monogenic disorders, mitochondrial disorders, and the polygenic disorders. Now, what do you mean by genetic disorders? It is the disease or the disorder occurring due to abnormality in the chromosome and the mutation in the gene are called as a genetic disorder. क्रोमोसोम में एबनॉर्मिलिटी हो सकती है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ सकता है, क्रोमोसोम का नंबर कम हो सकता है, जीन में म्यूटेशन आ सकता है, तो जीन चेंज हो सकती है, जीन ये रिप्लेस हो सकती है, उसका फ्रेम शिफ्ट हो सकती है कि डबल आ सकता है, या कट हो सकती है, डिलीट हो सकती है. सो दीज आर द म्यूटेशंस. मतलब नॉर्मल जो जेनेटिक मेकअप है वो छोड़ के अगर दूसरा कोई जेनेटिक मेकअप उसमें आ गया है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं. विद इन अ सिंगल जीन, एक जीन के अंदर भी हो सकता है. पर्टिकुलर अलील के बारे में, एक जीन में दो अलील हमने बात किया था, तो वैसे भी हो सकता है. सो the chromosomal abnormalities include either increase or decrease in number and the deletion or translocation of any part of the chromosome. कोई पार्ट भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे फिजिकल डिसऑर्डर्स है, क्लेफ्ट लिफ्ट, अल्बिनिज्म. फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया. Human beings have total 46 chromosome, that is 23 pairs, and there is a great variation in size and shape of each chromosomal pair, and these chromosomal pairs have been numbered. उनको एक पर्टिकुलर नंबर है. आउट ऑफ 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स. आउट ऑफ 23 पेयर्स, 22 पेयर्स are same in male as well as female. Those are called as autosomes,
and the one pair, that is 23rd pair, that is sex chromosome, और उसको दूसरा नाम है allosomes. Now the chromosomes in woman, 22 pairs are same, and single one pair, that is XX chromosome. In men, 44 chromosomes plus XY, that is 22 pairs are same, that is 44 chromosomes are same, 20 मतलब 22 pairs, and the single pair, that is X and Y, these are different in male and different in female. Now chromosomal abnormalities. The following are the disorders that occur due to numerical changes in the chromosome. If there is a change in the number of autosomes is less, the offsprings are not sterile. If there is increase in number of any autosomal pair, the physical or the mental abnormalities arise. If lifespan is shortened, with the shortened lifespan, following are the some disorders. One is Down syndrome, Turner syndrome, and the Klinefelter syndrome. We are going to see these three disorders in details. These are the examples of or the disorders of chromosomal abnormalities. So first is Down syndrome, 46 plus 1, that is trisomy of 21st chromosome. We will see in detail. Down syndrome is a disorder arising due to chromosomal abnormalities. This is the first discovered and described chromosomal disorder in human being, and this disorder is characterized by presence of 47 chromosomes. Average टोटल क्रोमोसोम जो नॉर्मल जो जेनेटिक मेकअप है वो 46 क्रोमोसोम का रहता है. दैट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसके लिए 47 क्रोमोसोम प्रेजेंस रहते हैं डाउन सिंड्रोम में. इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. जो 21st नंबर पे जो क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. Infants with these disorders have one extra chromosome with 21st pair in every cell of their body. Therefore, they have 47 chromosome instead of 46 chromosome. Now, the children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded. They have the most prominent characteristic, mental retardation. And the next characteristic is a short lifespan. Next is short height, short wide neck, flat nose, short fingers, scanty hair, single horizontal crest on a palm, a life expectancy about 16 to 20 years. 16 से 20 साल के बीच में ये बच्चे रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन उतनी ही रहती है, इसके ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहते. नेक्स्ट, दैट इज टर्नर सिंड्रोम. It is also called as a monosomy of X chromosome. As with the autosome, abnormalities in the 6 chromosome also cause some disorders, and this disorder is called as a Turner syndrome or the 44 plus X. It is arise due to either inheritance of only one X chromosome from the parent. पेरेंट से हमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिला है उस बच्चे को, तब हो सकता है. ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम पे जो जेंडर रिलेटेड पार्ट है तो वो पार्ट एक्टिव ही नहीं हुआ, उसकी वजह से कभी हो सकता है. इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 44XX कंडीशन, जो एक नॉर्मल फीमेल में जो कंडीशन रहती है 44XX कंडीशन रहती है, वो नॉर्मल कंडीशन ये टर्नर सिंड्रोम में नहीं रहती. उसका एक एक्स क्रोमोसोम
नहीं रहता. सो द वुमन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम विल शो 44 प्लस एक्स कंडीशन. एक एक्स क्रोमोसोम उसको नहीं मिला या एक्टिव ही नहीं हुआ. सच वुमन इज स्टराइल which is not able to produce children and due to improper growth of her reproductive organs. Now next is Klinefelter syndrome. This syndrome is present in males. Condition is 44 plus XXY. So this disorder arises in males due to abnormalities in sex chromosome. In this disorder, the men have one extra X chromosome and therefore his combination, that मेल का कॉम्बिनेशन रहेगा 44 प्लस XXY. एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगा. नॉर्मल जो उसका कंडीशन रहेगा 44 प्लस XY, लेकिन एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहने की वजह से वो डिसऑर्डर तैयार हो गया. ये जो मेन है और द मेल्स है वो सेक्सुअली स्टेराइल रहेंगे बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. सो नेक्स्ट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स. दीज डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू occurring due to mutation in only one, that is single gene. Due to this defective gene it is called as a monogenic disorder. मोनो मतलब वन, एक जीन में म्यूटेशन या डिफेक्ट आता है और उसकी वजह से डिसऑर्डर तैयार होती है या डिसीज़ पैदा होता है, तो ऐसे डिसीजेस को बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर. Approximately 4,000 different disorders of this type of monogenic disorder are known today. Due to abnormal gene, their products are either produced in insufficient quantity or not at all. उनका जो वो जीन जो प्रोडक्ट तैयार करने वाली है, वो जो प्रोडक्ट है एक तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में तैयार होगा या तो फिर तैयार ही नहीं होगा because of defect or because of mutation in that particular single gene, and it causes abnormal metabolism and that may lead to the death at the tender age. थोड़े छोटे बच्चों में अगर ये मेटाबॉलिज्म का कंडीशन अगर रहा या मोनोजेनिक डिसऑर्डर रहा तो ऐसे बच्चों में वो जानलेवा भी हो सकता है. नाउ there are some monogenic disorders. First is Huntington's disease, Tay Sachs disease, galactosemia, phenylketonuria, sickle cell anemia, cystic fibrosis, albinism, hemophilia and night blindness. These are the monogenic disorders which are occurring due to mutation or the defect in single gene. एक जीन में अगर डिफेक्ट हो गया तो इतने सारे डिसीजेस हो सकते हैं. आप ये हर एक का यूट्यूब में गूगल में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, तो हम इसमें से सिर्फ दो देखने वाले, दैट इज़ अल्बिनिज़म और सिकल सेल एनीमिया. अल्बिनिज़म, it is the genetic disorder and our eyes, skin, hair have color due to a brown pigment that is melanin. हमारी आँखों को, स्किन को, हेयर्स को जो भी कलर है वो कलर एक ब्राउन पिगमेंट से आता है. उस ब्राउन पिगमेंट का नाम है मेलानिन. अभी ये मेलानिन का सिक्रेशन जो है वो एक जीन डिसाइड करती है, और ये अल्बिनिज़म के डिसीज़ में क्या होता है कि वो जो मेलानिन है वो तैयारी नहीं करती, वो जो जीन है, एंड द स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स आर वाइट, eyes are usually pink due to absence of melanin pigment in the retina and sclera. Now next is sickle cell anemia. Normally हमारे जो
ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, वो आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकॉन्वेक्स रहता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा। सो ये जो बाइकॉन्वेक्स शेप है, वो शेप क्या होता है, ये सिकल के जैसे रहता है। सिकल आपको पता रहेगा, आपके घर में अगर ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसे, घास काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको सिकल बोलते हैं। तो ये सी शेप रहेगा, दैट इज सी शेप बनता है किसका, आरबीसीज का जो शेप है वो सी शेप बन जाता है। इन सिकल सेल एनीमिया, even a minor changes in molecular structure of protein and DNA may lead to the disease or disorder. And the normal hemoglobin, we have hemoglobin, heme is a protein part and globin is a uh, hemoglobin has a glutamic acid on the sixth position, that is सिक्स्थ अमाइनो एसिड का नाम ग्लूटामिक एसिड है, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर जो सिक्स्थ वाला पोजीशन है वो ग्लूटामिक एसिड का रहता है। एंड द इरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड corpuscles, that is RBCs, are normally biconcave. However, if that glutamic acid is replaced by valine, the shape and structure of hemoglobin molecule changes, and due to this the erythrocytes or the red blood corpuscles, that is RBCs, which are normally biconcave, become sickle cell, that is C shape, and this condition is called as a sickle cell anemia. The oxygen carrying capacity of hemoglobin in such individual is very low, बहुत ही कम रहती है ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी, एंड इन दिस कंडीशन क्लम्पिंग एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स also occur most of the time, and as a result the blood vessels are obstructed and circulatory system, brain, lung, kidney, these are damaged due to various problems. The sickle cell anemia is a hereditary disease. It occurs due to changes in genes during conception. If the father and mother are both affected due to sickle cell anemia, the carriers of these disorders, if father and mother are the carriers, if their offsprings are likely to suffer from this disease. Hence, marriages between the person who are carriers of suffering from sickle cell anemia should be avoided. दो लोगों के बीच में जब भी शादी हो रही है, तो शादी होने के टाइम पे कुंडली देखने से अच्छा है या उनका रिश्ता देखने से अच्छा है, आप उनका ब्लड का जो कॉम्बिनेशन है वो चेक करो, वेदर द क्रोमोसोम हैव एनी प्रॉब्लम और एनी जीन हैव एनी प्रॉब्लम। तो अगर उसका मैपिंग अगर करवा के लेते हैं तो वो इजी रहेगा। तो कुंडली देखने से अच्छा है कि आप मैपिंग देखो, तो अगला वाला जनरेशन जो है वो ठीक ठाक नॉर्मल पैदा होगा। There are two types of sickle cell anemia. First is sickle cell anemia carriers, AS, and the second one is sufferer from sickle cell anemia, SS. Now, there are some symptoms of sickle cell anemia. First is swelling of hands and legs, pain in joints, severe general body ache, frequent cold and cough, constant low grade fever, exhaustion, pale face, low hemoglobin content. These are some symptoms, but you can improve that, uh, improve from that symptom. If you find that symptom, you can improve by increasing your level. Okay,
डिसीज़ कैसे होता है वो ज़रा देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स फ्रॉम फॉलोइंग चार्ट। सिम्बॉल्स आर देयर। ए नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान। एस कैरियर है और एस सफ़रर है। तो अगर बॉय और द मैन, मेल एंड फीमेल, और बच्चे कैसे होंगे, तो पहला जो चार्ट है वो मेल का है, जिसके साथ फीमेल शादी करेगी और उसको इस तरह से बच्चे तैयार हो सकते हैं। दैट इज़ प्रेडिक्टिव चार्ट। पहला चार्ट है, पहला पॉइंट है, अगर वो नॉर्मल रहेगा, दोनों भी नॉर्मल, लड़का और लड़की दोनों भी नॉर्मल है, तो बच्चे भी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, नॉर्मल और एएस मतलब कैरियर। यहाँ पे देखो, एएस मतलब कैरियर। अगर लड़का नॉर्मल होगा या कैरियर होगा, लड़की कैरियर होगी या नॉर्मल होगी, तो देर आर 50% चांसेस ऑफ हैविंग द पेरेंट चाइल्ड और द कैरियर चाइल्ड। तो यहाँ पे 50% इसके नॉर्मल के चांसेस है और 50% कैरियर के चांसेस है। मतलब उसको डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट रहेगी। तीसरी कंडीशन में क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी है और सफ़रर भी है, दोनों में से एक, मैन मतलब लड़का और लड़की, सफ़रर या तो फिर नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ सफ़रर ज्वाइन करो, सफ़रर के साथ नॉर्मल ज्वाइन, दोनों में से एक भी सफ़रर रहेगा तो ऑल प्रोजेनी विल बी कैरियर। सब प्रोजेनी कैरियर रहेगी, मतलब एएस रहेगी। और इफ वन पेरेंट इज नॉर्मल, वन इज सफरर। एक अगर पेरेंट सफरर नॉर्मल है तो एक क्या रहेगा, सफरर रहेगा। चौथे कंडीशन में दोनों भी कैरियर है, तो देर आर 25% ऑफ चांसेस ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, 25% सफरर और 50% इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरिड, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। पांचवा कंडीशन है एएस और एसएस। एएस मतलब कैरियर, एसएस मतलब सफरर। सो अगर लड़का कैरियर है, लड़की सफरर है, या तो फिर उल्टा लड़का सफरर है, लड़की कैरियर है, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि 50% जो बच्चे होंगे, जो लड़का होगा, जो लड़की होगी या लड़का होगा, 50% चांसेस है कि वो कैरियर बन सकता है या तो फिर सफरर बन सकता है। दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि एट ए टाइम एक कपल को एक ही बच्चा होगा, एक हस्बैंड वाइफ को एक ही बच्चा हो सकता है, ये नॉर्मल है। और जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो है ट्विंस, 2 3 4 ऐसे करके के। लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक मैरिड कपल को एक ही बच्चा हो सकता है एट ए टाइम। नेक्स्ट सिक्स्थ कंडीशन है दोनों भी सफरर है, तो देर आर चांसेस दैट ऑल प्रोजेनी विल बी सफरर इफ बोथ द पेरेंट्स आर सफरर। द नेक्स्ट पार्ट इज डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। कैसे मुझे पता चलेगा कि सिकल सेल एनीमिया है हुआ है, तो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम द फर्स्ट टेस्ट इज solubility टेस्ट एंड इट इज़ अवेलेबल इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी जिला रुग्णालय है आपके यहाँ पे, वहाँ पे ये solubility टेस्ट अवेलेबल होती है। एंड इट इज़ द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, only for diagnosis. We have to check whether you have sickle cell anemia or not. You can clarify from your district of hospital. The next test is confirmatory diagnostic test. यहाँ पे confirm आपको बता दिया जाएगा। The test का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेस्ट क्या बताते हैं, ये भी टेस्ट आपको रूरल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। इसको शायद किसी को भी पैसे नहीं लगते, क्योंकि ये
नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के अंडर आता है, तो इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेस्ट फ्रीली अवेलेबल रहती है, तो यू कैन हैव ड्यूरिंग at when your marriage is fixed, at that time you can do this test। और जो भी लड़का होगा तो लड़की को भी टेस्ट करने के लिए बोलना है, लड़की होगी तो लड़के को भी, क्योंकि आगे वाला जो जनरेशन है वो आपका ठीक तरह से जाए, इसके लिए ये टेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लो किसी को हो गया तो क्या करना चाहिए? द डिसीज इज स्प्रेड इन ओनली वन वे, दैट इज रिप्रोडक्शन। बच्चों को अपने माँ बाप से ही वो जीन मिलेगा। हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। फर्स्ट, अ कैरियर और द सफरर शुड अवॉइड मैरिज विथ अनदर कैरियर और द सफरर। जो कैरियर है, मान लो मुझे पता चला कि मैं सिकल सेल एनीमिया का कैरियर हूँ, अगर सफ़रर रहूँगा तो मुझे खुद को वो प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन मैं अगर कैरियर हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे डिसीज़ है या नहीं। तो अगर मुझे टेस्ट करने के बाद, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि कंफर्म हो गया कि मुझे सिकल सेल एनीमिया है, तो मैं दूसरे सिकल सेल एनीमिया वाले कैरियर के साथ या सफ़रर के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो भी बच्चा होता है उसको वो ब्लड का प्रॉब्लम होता है। तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि उनमें ब्लड का बहुत सारा, ऑक्सीजन का लेवल का बहुत सारा इशू रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये टेस्ट बहुत काम आते हैं कि आप नॉर्मल हो उस जीन के लिए, क्योंकि जीन का हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज़ ऑल एट द मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सब होता है, इसके लिए समझ में आना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक अ टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली। आपको अभी तक बहुत बार स्कूल में रेड कलर के टैबलेट आपको खिलाए गए हैं। जो बच्चों को स्कूल में दिया जाता है फॉलिक एसिड का टैबलेट, बोलते हैं कि ये खाना खाने के बाद आपको लेना है, और ये हफ्ते में या ये टैबलेट दिया जाता है। ये आयरन कंटेंट बढ़ाने का काम किया जाता है, फॉलिक एसिड बढ़ाने का काम किया जाता है। और अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जानकारी रखते हो तो आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है हमारे बॉडी में हर एक सेल में एक पावर सप्लाई का काम करता है। इसके अंदर एनर्जी भरी रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, ये इसमें म्यूटेशन हो सकते हैं। अभी अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर म्यूटेशन हो गए तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इट विल बी डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन। जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है, मेरे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मुझे मेरे मम्मी से मिला है। आपके बॉडी में जो भी हर एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो आपकी मम्मी से आपको मिला है। So, during fertilization, mitochondria are contributed by egg cell alone, that is ovum. Hence, mitochondrial disorders are inherited from your mother only, not from your father. So, mitochondrial disorder जितने भी है वो सब आपको आपकी मम्मी की देन है, उनको उनकी मम्मी की देन है। So example is Leber hereditary optic neuropathy. You can Google it, you can find out details about Leber hereditary optic neuropathy और आप बता सकते हो उसके बारे में। So that will be again one homework for you. Next is polygenic disorder. Poly मतलब दो या दो से ज़्यादा जीन्स एक ही डिसऑर्डर करने में रिस्पॉन्सिबल है।
तो ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर या एक डिसीज किसी एक जीन से नहीं होता, तो उसके लिए दो या दो से ज़्यादा जीन्स जिम्मेदार रहते। ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसे डिसीज को पॉलीजेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। Sometimes disorder arise due to mutation in more than one gene. In most of the disorders, their severity increases due to effects of environmental factors on the fetus. There are some examples. First is cleft lip, cleft palate, constricted stomach, spina bifida, that is the spinal cord का ये disease रहता है. Beside this, there are some other diseases which are popular, which are polygenic disorders like diabetes, blood pressure, heart disorders, asthma, obesity. और ये जो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स वो जो है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। इसके लिए पता नहीं कि कुछ डिसीज़ मेरे खाने की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ डिसीजेस मेरे रहने के तौर तरीके से भी तैयार हो सकते हैं। तो जो जीन है वो जीन अगर अल्टर हो गया, जो जीन है वो हर एक जीन अलग अलग काम करता है, बहुत सारे जीन एक ही काम में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर एक भी जीन का बैलेंस खो गया तो उस टाइम पे वो जो जीन है वो इस तरह के पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स पैदा कर सकते हैं आपके बॉडी में। उसको जानना बहुत कीमती है कि यहाँ पे कौन सा जीन ट्रिगर हो गया है और मेरे अंदर ये वाला डिसऑर्डर तैयार हुआ है। तो ये जानने के लिए आपको पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कॉमन डिसीजेस है। हार्ट डिसीजेस कॉमन है, अस्थमा कॉमन है, ओबेसिटी कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है, डायबिटीज़ कॉमन है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग ऐसे ही एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, एक केस, दो केस ऐसे पढ़ के किसी को सलाह मशवरा देते हैं, लेकिन वो एक केस जो रहता है वो एक केस उसका पर्टिकुलर एक जीन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। एक बंदे में पहले वाले जीन की वजह से अगर ये ट्रिगर हो गया है तो दूसरे बंदे में वो पहले वाले ही जीन की वजह से नहीं हो सकता, वो दूसरे वाले जीन की वजह से हो सकता है। तीसरे बंदे में तीसरे वाले जीन की वजह से हो सकता है। जितने आप केस स्टडी करोगे उतने आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो टोटल कितने जीन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके अंदर कौन से कंडीशंस है जो हमें याद रखना है, उस टाइम पे आपको ध्यान में आएगा कि जो भी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है वो हमारे अंदर हम खुद ही पैदा करते हैं। दूसरा कोई भी आपको बताता नहीं है या आपको किसी से भी ये विरासत में नहीं मिलते हैं, ये हम खुद ये पैदा करते हैं। तो इसके लिए आप खुद ध्यान दे दो। Next, polygenic disorders do not strictly follow the Mendel's principles of heredity, and these disorders arise from complex inheritance between environment, your lifestyle, and the defects in several genes. आपके बाजू में जो environment है उसके साथ आप जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, लेट उठना, जल्दी उठना, खाना देर से खाना जल्दी खाना टाइम पे खाना टाइम पे नहीं खाना, थोड़ा सा ही खाना, ज़्यादा खाना, डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपके मनपसंद चीज़ें अगर बनाई गई होती हो तो आप बाकी किसी का भी नहीं सुनते हो, पेट भर के खाना खाते रहते हो। लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है अंदर कि बाबा तू अगर ये लाइफस्टाइल अगर नहीं छोड़ता है तो मैं मेरा कंट्रोल खो दूंगा। ये बताने वाला अंदर कोई तो जीन है। इसके लिए ध्यान दे दो कि आपको तभी भी याद रहना चाहिए कि आपका कोई अंदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है।
तो आपके बॉडी को ही बात कर रहा हूँ मैं। आपके बॉडी के अंदर हर एक सेल में ये 46 क्रोमोसोम्स है, और ये 46 क्रोमोसोम में जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो जीन्स कभी भी कोई भी अल्ट्रेशन हो सकता है, कोई भी कंट्रोल खो सकता है। आपके कॉम्प्लेक्स ये लाइफस्टाइल की वजह से, कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस के वजह से, एनवायरनमेंट एक बोल रहा है, आप अलग कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। फिजिकल चेंजेस नहीं, फिजिकल चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर की बात कर रहा हूँ, जो हमें उम्र के 40 साल के बाद ये सब दिखाई देता है। नेक्स्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर। The tobacco addiction on cancer. Cancer is a uncontrolled growth of cells. सेल का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड रहता है। Many people consume tobacco either by smoking or chewing. So the consumption of tobacco in any form will cause cancer. So the smoking of cigarette or the BD adversely affect the presence of प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अभी ये डाइजेशन के प्रोसेस पे बहुत बेकार तरीके से अफेक्ट होता है। इट कॉजेस अ बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट एज वेल एज इट विल कॉज अ कफ। नाउ एक्सेसिव स्मोकिंग विल कॉज instability and trembling of your fingers। आपके हाथ ऐसे थर-थर कांपते हैं। A dry cough causes sleeplessness। नींद पूरी नहीं होती क्योंकि जो कफ है वो कफ ज़्यादा रहता है उन लोगों में। टोबैको कंजम्पशन कैन आल्सो लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन। उम्र कम हो जाती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। Tobacco consumption can lead to shortening of lifespan, chronic bronchitis, pericarditis, cardiac problem, cancer of lungs, mouth, larynx, pharynx, pancreas, urinary bladder, etc. निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो निकोटिन है जो टोबैको में रहता है, इट विल अफेक्ट द सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी वो बहुत सारा इफेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके बॉडी में जितने भी नर्व्स है, वो एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, लेसन नंबर 15 में हमने देखा था। afferent nerve, efferent nerve, cranial nerve, spinal nerves, these are the nerves। इस पे पूरा के पूरा ये निकोटिन अफेक्ट करता है, स्पार्किंग करता है वो। तो बोलते हैं ना, वो अगर नींद लग रही है तो वो टोबैको का सेवन करते हैं और उनकी नींद ख़त्म होती है। तो ऐसा स्पार्किंग तैयार होता है और स्पार्किंग होने की वजह से वो नींद उनकी चली जाती है। बट उस टाइम पे आपके बॉडी को नींद की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हमारी लालच की वजह से हम वो नींद क्या करते हैं, वो नींद को डिस्टर्ब करते हैं और बॉडी का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो चेंज होता है और हम काम पे लगते हैं। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में प्रेशर आ जाता है और उस टाइम पे वो प्रेशर क्या होता है, वो वैसे ही पेंडिंग रहता है और ऐसे करके वो नर्वस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। आर्टरीज बिकम हार्ड, जो आपके आर्टरीज है वो हार्ड हो जाता है, कॉजेस आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन। यहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकता है। टोबैको स्मोक कंटेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक पायरिडीन्स एंड अमोनिया, अल्डिहाइड फिरॉल, फॉर्फिरॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, sulfur dioxide, and this cause uncontrolled cell division। Again,
ये सेल डिवीजन का पार्ट है। सेल डिवीजन हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस, और ये दोनों भी प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यूस चालू रहते हैं, और ये भी आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में जो माइटोसिस और मियोसिस होता है ये कंट्रोल रहता है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है। बट ये जो टोबैको कंजम्पशन करने वाले लोग हैं जिनके अंदर कैंसरस ग्रोथ तैयार हुई है, कभी बोलते हैं ब्रेन में ट्यूमर तैयार हो गया है, कभी बोलते हैं लंग्स का कैंसर हो गया है। तो कैंसर होना मतलब एक सेल ने अपना काम करना छोड़ दिया, वो न्यूक्लियस का कंट्रोल छोड़ दिया है। मान लो एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके कंट्रोल में गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा और वो न जाने कितने डिज़ास्टर तैयार करते करते जाएगी। और इस तरह से आपके सेल में भी वैसा ही रहता है। अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल अगर फेल हो गया तो वो सेल डिवाइड करते जाएगी, 1 का 2, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 16, ऐसे करके वो सेल का डिवीजन मल्टीपल होता जाएगा और इस तरह से वो अपना नंबर बढ़ाएगी। वैसे भी आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में जो है वो सेल डिवीजन कंट्रोल फॉर्म में चला रहता है। लेकिन ये जो कैंसर वाली कंडीशन है इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रहता है। नेक्स्ट, tobacco smoke is full of minute carbon particles and which causes normal tissue of the lungs to transform it into thickened black tissue, and this causes a cancer. While chewing tobacco or the tobacco product, much of the extract is absorbed in our body, and excessive tobacco consumption may cause the cancer of lips or tongues, visual disorders, or the tumors. Now, it's your responsibility to protect our body from the cancer. You have to avoid first smoking. If someone is smoking, you have to tell him प्लीज़ डोंट स्मोक हियर, बिकॉज स्मोकिंग करने वाले से ज़्यादा उसके बाजू वाले को ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन जो हमें कैंसर से बचाएगा वो है कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड द टोबैको प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म। आपके घर के बाजू में जो भी ऐसा दुकान का काम कर रहा है उसको एक बार रिक्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार बताओ कि ये बहुत ही डेंजरस है। आपके घर में अगर किसी के घर में दुकान है, अगर आप बेच रहे हो तो ये बंद करो। अगर नहीं बंद करेंगे तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आप उसके ज़िम्मेदार रहोगे। इतना बाकी लोगों को बताओ कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन टू हुम यू आर गिविंग। आप जिसको ये मौत का सामान दे रहे हो वो उसके मौत के ज़िम्मेदार आप खुद रहोगे। अगर ये इतना भी अवेयरनेस हो गया तो ज़रूरत नहीं है कि हर टाइम पे सरकारी पूरा कर सकते। अगर आपसे शुरुआत हो गई तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने शुरुआत की तो भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपने बताया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये लेसन पढ़ाने का इतना ही मकसद था कि अवेयरनेस आ जाए। सो हमने इस लेसन में टोटल पॉइंट सब कवर किए हैं। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए के टाइप्स, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाइब्रिड क्रॉस। सो आपको वो टेस्ट भेजे हैं, वो टेस्ट सॉल्व करके आज दे दो।